মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোক সকলোকে ৰিনাছ অনলাইন টিচিঙলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই তোমালোকৰ লগত তোমালোকৰ 5 নম্বৰ লেছনৰ সড়ক কি বাত এই প্ৰবন্ধটি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ আৰু আমাৰ এই প্ৰবন্ধটিৰ লেখকগৰাকী হৈছে ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰ। তেতিয়াহ'লে আহাচোন আমি প্ৰথমতে ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰৰ বিষয়ে জানি লওঁ। ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰ 1861 পৰা 1941। विश्वकवि की आख्या से विभूषित गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर उन प्रातस्मरणीय मनुष्यों की परंपरा में आते हैं जिन्होंने भारतीय सभ्यता और संस्कृति को अपने समग्र रूप में चित्रित किया। अपनी रचनाओं में न सिर्फ भारत की गौरवमय सभ्यता संस्कृति को अभिव्यक्ति दी बल्कि विश्व मानवतावादी दृष्टि से पश्चिमी सभ्यता संस्कृति के उज्जवल तत्वों को अपनाने का आह्वान भी किया। आप मूलतः बांग्ला के कवि कलाकार थे, परंतु अपने उदारवादी मानवतावादी दृष्टि के कारण आपने क्षेत्रीयता से ऊपर उठकर राष्ट्रीयता का, फिर राष्ट्रीयता से ऊपर उठकर अंतर्राष्ट्रीयता एवं विश्व बंधुत्व का स्पर्श किया। इस प्रकार वे पहले बंगाल के, फिर भारतवर्ष के और फिर संपूर्ण विश्व के चहेते बने। कवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर হৈছে এগৰাকী প্ৰাতস্মৰণীয় ব্যক্তি বা মনীষী। তেখেতে কেৱল ভাৰতবৰ্ষৰ সভ্যতা সংস্কৃতিৰ বিষয়েই নহয়, তেখেতে সমগ্ৰ বিশ্বৰ যি সভ্যতা সংস্কৃতি সেই সভ্যতা সংস্কৃতি য'ত মানৱতাবাদী চিন্তাধাৰা বা দৃষ্টিভংগী থাকিব তেনেকুৱা ধৰণৰ দৃষ্টিভংগী থকা মানৱতাবাদী যি চিন্তাধাৰা সেই চিন্তাধাৰা আমি গ্ৰহণ কৰিব লাগে বুলি তেখেতে কৈছিলে। তেখেত মূলতঃ বাংলা কবি সাহিত্যিক আছিল, যদিও তেখেতৰ যি উদাৰতাবাদী বা মানৱতাবাদী দৃষ্টিভংগী সেই মানৱতাবাদী দৃষ্টিভংগীৰ কাৰণে তেখেত আঞ্চলিকতাৰ পৰা উঠি ৰাষ্ট্ৰীয়তাৰ ক্ষেত্ৰত তেখেত উজ্জ্বল নক্ষত্ৰ হিচাপে জিলিকি উঠিছিল। আকৌ ৰাষ্ট্ৰীয়তাৰ ওপৰত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয়তাৰ যি ক্ষেত্ৰ সেই ক্ষেত্ৰখনতো তেখেতে বিশেষভাৱে সফল লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। তেখেতেই হৈছে ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰথমগৰাকী নোবেল বঁটা বিজয়ী সাহিত্যিক। कवि गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्म 7 मई 1861 में कोलकाता के जोरा साको में एक संपन्न एवं प्रतिष्ठित बांग्ला परिवार में हुआ था। कविगुरु रवीन्द्रनाथ ठाकुৰৰ जन्म 7 মে 1861 চনৰ কলিকতাৰ জোৰা সাকো নামৰ ঠাইডোখৰত এটা সম্পন্ন ভাল এটা পৰিয়ালত তেখেতৰ प्रतिष्ठित এটা পৰিয়ালত তেখেতৰ জন্ম হৈছিল। आपके पिता देवेंद्रनाथ ठाकुर जी दार्शनिक प्रवृत्ति के प्रमुख प्रख्यात समाज सुधारक थे। তেখেতৰ দেউতাক আছিলে দেবেন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰ আৰু যিগৰাকী আছিলে এগৰাকী দাৰ্শনিক পণ্ডিত আৰু সমাজ সংস্কাৰক। रविंद्रनाथ ठाकुर की शिक्षा दीक्षा मुख्यतः घर पर ही हुई আৰু रविंद्रनाथ ठाकुৰৰ শিক্ষা দীক্ষা মুখ্য ৰূপত ঘৰতে হৈছিলে। काव्य संगीत चित्रकला आध्यात्मिक चिंता सामाजिक सुधार एवं राजनीतिक सुरुचि का वातावरण उन्हें परंपरा और परिवार से मिला। काव्य संगीत चित्रकला आध्यात्मिक चिंता सामाजिक सुधार বা সামাজিক সংস্কাৰ তথা ৰাজনৈতিক যি সুৰুচি সেই সুৰুচিৰ যি বাতাবৰণ সেই বাতাবৰণ তেখেতৰ পৰিয়ালৰ পৰাই তেখেতে লাভ কৰিছিলে। उन्होंने प्रकृति एवं जीवन की खुली पुस्तकों लगन के साथ पढ़ा। তেখেতে প্ৰকৃতি আৰু জীৱনৰ যি খোলা কিতাপ সেই খোলা কিতাপ তেখেতে খুব মনোযোগেৰে তেখেতে পঢ়িছিলে। स्वाध्याय के बल पर अपने विविध विषयों का विपुल ज्ञान प्राप्त कर लिया। তেখেতে স্ব অধ্যয়নৰ জৰিয়তে বিভিন্ন বিষয়ৰ জ্ঞান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে। 17 वर्ष की अवस्था में आप इंग्लैंड गए और 17 বছৰ বয়সত তেখেতে ইংলেণ্ডলৈ গৈছিলে। वहाँ आपको कई सुप्रतिष्ठित अंग्रेज कवि साहित्यकारों का
सानिध्य प्राप्त हुआ और वे पश्चिमी विचारधारा के आलोक से दीप्त होकर स्वदेश वापस आए। আৰু তাত তেখেতে কেইবাগৰাকীও সুপ্ৰতিষ্ঠিত ইংৰাজী কবি সাহিত্যিকৰ লগত তেখেতৰ দেখা সাক্ষাৎ হৈছিলে আৰু তেওঁলোকৰ যি চিন্তাধাৰা সেই চিন্তাধাৰাৰ দ্বাৰা তেখেতো প্ৰভাৱিত হৈছিলে আৰু পশ্চিমী যি চিন্তাধাৰা সেই চিন্তাধাৰাৰ যি আলোক সেই আলোক লৈ তেখেত ভাৰতবৰ্ষলৈ স্বদেশলৈ उलटी আহিছিলে। काव्य प्रतिभा के धनी रविंद्रनाथ ठाकुर ने 7 वर्ष की कोमल अवस्था में ही कविता लिखना आरम्भ कर दिया था। काव्य प्रतिभार क्षेत्रत तेखेत बिराट धनी आसिल আৰু সেইকাৰণে তেখেতৰ যেতিয়া 7 বছৰ হৈছিল সেই 7 বছৰ বয়সৰ পৰাই তেখেতে কবিতা লিখিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিলে। तब से लेकर देहावसान के समय तक आपकी अमर लेखनी बराबर चलती रही আৰু তেতিয়াৰ পৰা তেখেতৰ মৃত্যুৰ আগমুহূৰ্তলৈকে তেখেতৰ যি লিখা কাৰ্য সেই লিখা কাৰ্য তেখেতে চলাই গৈছিলে। आपने कई हजार कविताओं गीतों कहानियों रूपकों भावनाट्य एवं निबंध की रचना की। तेखेते केबा हजारों कविता लिखिছিলে, गीत रचना কৰিছিলে, কাহিনী লিখিছিলে, ৰূপকথা যেটো ভাৱনাট্য বুলি কোৱা হয়, ভাৱনাট্য আৰু निबंध तेखेते रचना কৰি থৈ যায়। आपने उपन्यास भी लिखे जिनमें गोरा और घरे बाहरे विशेष रूप से उल्लेखनीय है। और तेखेते यार उपरिও उपन्यास लिखिছিলে। उपन्यासসমূহৰ ভিতৰত বিশেষকৈ गौरा और घरे बाहरे विशेषভাৱে उल्लेखযোग्य। आपके द्वारा रचित कहानियों में से काबुलीवाला एक कालजयी कहानी है। और तेखेतर द्वारा लिखित कहानीসমূहৰ ভিতৰত काबुलीवाला বুলি যিখন আছে সেইখন বিশেষভাৱে कालजयी। कवि शिरोमणि रविंद्रनाथ ठाकुर की कृति का आधार स्तंभ है उनका काव्य ग्रंथ गीतांजलि। और कवि रविंद्रनाथ ठाकुৰৰ যি साहित्यिक प्रतिभा है साहित्यिक प्रतिभार आधार ग्रंथখন হৈছে गीतांजलि, जिस पर आपको सन 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। যিখন কিতাপৰ কাৰণে তেখেতক 1913 চনত সাহিত্যৰ নোবেল বঁটা দিয়া হৈছিলে। आपकी अन्य रचनाओं में मानसी, संध्या संगीत, नैवेद्य, बलाका, क्षणिका आदि अन्यतम है। आपके द्वारा विरचित सैकड़ों गीतों से रविंद्र संगीत नामक एक निराली संगीत धारा ही बह निकली है। आपके द्वारा रचित जन गण मन भारतवर्ष का राष्ट्रीय संगीत है, तो आपकी ही रचना अमर सोनार बांग्ला पड़ोसी राष्ट्र बांग्लादेश का राष्ट्रीय संगीत है। तेखेतर अन्यान्य रचनाসমূह হৈছে मानसी, संध्या संगीत, नैवेद्य, बलाका, क्षणिका आदि। तेखेतर द्वारा विरचित माने केबा हाजारो गीत, बहुत गीत যিবিলাক গীতক আমি ৰবীন্দ্ৰ সংগীত নামেৰে জানো আৰু তাৰ এটা ধাৰা भारतवर्षत बৈ গৈছে। आपके द्वारा रचित जनगण मन भारतवर्ष का राष्ट्रीय संगीत है। और तेखेतर द्वारा रचित जी जनगण मन হৈছে ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত। ইয়াৰ উপৰি তেখেতৰ দ্বাৰাই ৰচিত আমাৰ সোনাৰ বাংলা বুলি যিটো তেখেতে গীত ৰচনা কৰিছিলে সেই গীতটো বৰ্তমান বাংলাদেশৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত হিচাপে আছে। कवि गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर ने पश्चिम बंगाल में बोलपुर के निकट शांति निकेतन नाम के एक शैक्षिक सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना की थी। कवि गुरु रविंद्रनाथ ठाकुरे पश्चिम बांगाলত तेखेते बोलपुर नाমৰ যি ঠাই সেই ঠাইৰ নিচেই কাষতে শান্তি নিকেতন নামৰ এখনি শৈক্ষিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্ৰ স্থাপনা কৰিছিলে। यो केंद्र गुरुदेव के सपनों का मूर्त रूप रहा और आगे यो विश्व भारती विश्वविद्यालय के रूप में प्रसिद्ध है। और এই যি শিক্ষা কেন্দ্ৰ সেই শিক্ষা কেন্দ্ৰৰ তেখেতৰ সপোন আছিল আৰু এই সপোন বৰ্তমান বিশ্ব ভাৰতী বিশ্ববিদ্যালয় হিচাপে মানে খ্যাতি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। अपने देश के स्वतंत्रता आंदोलन में भी रुचि ली थी। तेखेते भारतवर्षৰ स्वतंत्रता आंदोलনৰ ক্ষেত্ৰতো আগভাগ লৈছিলে। शांति निकेतन में आप आने पर मोहनदास करमचंद गांधी को अपने महात्मा के रूप में संबोधित किया था। शांति निकेतনত যেতিয়া মহাত্মা গান্ধী আহিছিল তেতিয়া তেখেতে মহাত্মা গান্ধীক মহাত্মা এই যি रूप এই रूपত তেখেতে সম্বোধন কৰিছিলে। राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी के पक्ष में अपना मत देते हुए गुरुदेव ने कहा था,
उस भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए जो देश के सबसे बड़े हिस्सों में बोली जाती है अर्थात हिंदी। तेखेते भारतवर्षर हिंदी भाषार राष्ट्रीय भाषा हिसापे स्वीकार करार क्षेत्र मत प्रकाश करिছিলে जे সেই ভাষাটোকে মানুহে ৰাষ্ট্ৰীয় ভাষা হিচাপে মৰ্যাদা দিব লাগে, যিটো ভাষা ভাৰতবৰ্ষৰ বা যিখন ঠাইৰ মানুহে বেছিকৈ কয়, যেনে হিন্দী ভাষা। 7 अगस्त 1941 को इस महान पुण्यात्मा का स्वर्गवास हुआ। 7 আগষ্ট 1941 চনত তেখেতৰ মৃত্যু হয়। कवि, गीतिकार, कहानीकार, उपन्यासकार, निबंधकार, संगीतकार, कलाकार, समाज सुधारक, शिक्षा, संस्कृति प्रेमी और राजनीतिज्ञ की बहुमुखी प्रतिभा के अधिकारी होते हुए भी गुरुदेव रवींद्रनाथ मूलतः कवि हृदय के थे। तेखेत बहुत प्रतिभार हुआ सत्त्वेও तेखेत मूलतः कवि एगराकी कविर हृदयर मानुह आसिल। उनके कोमल हृदय में अगर विश्व मानवता के प्रति प्रेम, करुणा और सहानुभूति थी तो मानवोत्तर प्राकृतिक उपकरणों जैसे पेड़ पौधे, नदी, निर्झर, पशु पक्षी, वन, उपवन, फूल, तारे, सूरज, चांद आदि के प्रति भी भरपूर आकर्षण था। तेखेत कवि हृदयर आसिल और तेखेत অকল মানৱৰ ক্ষেত্ৰতে নহয়, গছ গছনি, নদ নদী, পশু পক্ষী, বন উপবন, ফুল এই সকলোবিলাকৰ ক্ষেত্ৰতে তেখেতৰ যি আকৰ্ষণ, সেই আকৰ্ষণ সম্পূৰ্ণৰূপে মানে मानवीयतार आसिल। उनकी सूक्ष्म एवं पेनी दृष्टि जड़ और चेतन दोनों प्रकार के पदार्थों के अंतरतम तक पहुँच जाती थी। तेखेतर जी पेनी दृष्टि, है पेनी दृष्टि जीव केवल जीवई নহয় जड़ पदार्थरो एकेबारे अंतरतমৰ माने अंतरात्मात सोमाई गइसिले। लेखक ने आपके द्वारा रचित सड़क की बात वस्तुतः सड़क की आत्मकथा है और तेखेतर द्वारा रचित जी सड़क की बात है, सड़क की बात आसलते एटा आत्मकथा। लेखक ने इनमें सड़क का मानवीकरण किया है, जो तेखेते रास्ताटोक तेखेते मानवीकरण करिसे। सड़क अपनी आप बीती अथवा राम कहानी स्वयं सुनारे है। माने सड़क माने होइसे रास्ता, रास्ताय निजर ओपरत जी হৈ গৈছে বা নিজৰ জীৱনৰ ৰাস্তাৰ যি ঘটি থাকে দৈনন্দিন সেই কথাখিনিকে তেখেতে মানুহ হিচাপে সড়কক কল্পনা কৰিছে আৰু তেনেকৈ ইয়াত তেখেতে उपस्थापन करिसे। दरअसल इस पाठ में लेखक ने अपनी सूक्ष्म और पेनी दृष्टि से सड़क के अंतरतम का निरीक्षण करके उसकी आकांक्षा, स्थिति एवं उनके मनोभावों का ऐसा मार्मिक चित्रण किया है कि सड़क की बातें जीवन हो उठी है। यो एक मनोरम आत्मकथात्मक निबंध है। इसमें सड़क की बातों के जरिए मानव जीवन की कई महत्वपूर्ण बातें भी उजागर हुई है। आसलते तेखेते এই जी सड़क की बात, এই सड़क की बातर কাহিনীটোৰ জৰিয়তে सड़কৰ লগত জড়িত যি আকাংক্ষা, স্থিতি, মনোভাৱ সেইবিলাকৰ এটা মাৰ্মিক চিত্ৰ তেখেতে অংকন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। লগতে মানৱ জীৱনৰ বহুতো কথা তেখেতে ক'ব বিচাৰিছে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজিৰ এই পাঠটো মই ইয়াতে সামৰণি মাৰিছোঁ। নেক্সট ক্লাছত আমি সড়ক কি বাতৰ ভিতৰলৈ সোমাই যাম। তোমালোকে মোৰ ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিবৰ কাৰণে মোৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থবা আৰু ভিডিঅ'সমূহ লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিবা। তেতিয়াহ'লে আজি ইয়াতে সামৰিছোঁ। আকৌ নেক্সট ক্লাছত লগ পাম। ধন্যবাদ। টেক কেয়াৰ।